આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ આર્ટ્સ અને કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમના પરીક્ષાના માળખાઓ હાલમાં જ કોરોનાની પરિસ્થિતિને કારણે જે ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા રજૂ થયા છે તેની માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે. તો વિડીયો ધ્યાનથી અંત સુધી નિહાળજો. ધોરણ 12માં કઈ રીતે માળખાઓ અને કઈ રીતે પેપર સેટ થશે, બીજી પરીક્ષા સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ સાથેની છે અને આ પરીક્ષાની અંદર માળખા જે બદલાયા છે, પરીક્ષાની જે ABCDE વિભાગ કે ABCDEF વિભાગની જે માહિતી છે તેમાં 30% ઓબ્જેક્ટિવ અને 70% સબ્જેક્ટિવ સાથેના બીજી પરીક્ષાના માળખાઓ તૈયાર થઈ રહ્યા છે. તો વિડીયો અંત સુધી નિહાળજો. ICT Go for You ચેનલમાં હું કૃપેશ નાયક ફરી વખત આપનું સ્વાગત કરું છું. જેમણે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જે નવા વ્યુઅર્સ છે જેમણે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તેમને માટે www.ictgoforyou ની લિંક તમને અહીં દેખાઈ રહી છે, ત્યાં જઈને તમે ક્લિક કરી શકો છો અને આ જ રીતે નવા શૈક્ષણિક વિડીયોની માહિતી પણ નોટિફિકેશન દ્વારા મેળવી શકો છો. તો શરૂ કરીએ. આપણે આજનો વિષય આપ્યો છે બ્લુપ્રિન્ટ જનરલ સ્ટ્રીમ માટે એકાઉન્ટ, સ્ટેટ, ઇકો, ઓસી, સાયકોલોજી, હિસ્ટ્રી જેવા વિષયો માટે લક્ષ્ય જ્યાદા દૂર નહીં. હવે તમે માત્ર આજે જો આ વિડીયો નિહાળશો તો હવે પછી માત્ર જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ એમ માનની કે લગભગ 2 કે 3 મહિનાની મુસાફરી તમારી બાકી છે ધોરણ 12ના બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ, ગુજરાત બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ. અને એના માટે જ અહીંયા એક સરસ કોર્સ લખ્યું છે, લક્ષ્ય જ્યાદા દૂર નહીં, બસ રફતાર થોડી તેજ કરनी है, आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है. કઈ રીતે વાંચવું, કેવી રીતે વાંચવું તેનો વિડીયો આપણે અગાઉ જોઈ ગયા. પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરવું, બીજી પરીક્ષા માટેનું માસ્ટર પ્લાનિંગ શું છે તેની માહિતી આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોઈ ગયા. કઈ રીતે 100 માર્કના પેપરને 3 કે 4 દિવસથી બી ઓછા સમય આપણી પાસે બીજી પરીક્ષા માટે રહ્યા છે તો મેનેજ કરવું તેનો માસ્ટર પ્લાન આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જોયો. પરંતુ નવું માળખું તે સમયના આવેલ હોવાથી તેની ચર્ચા અધૂરી હતી, જે આ વિડીયોમાં આપણે પૂર્ણ કરીશું. વિડીયો અંત સુધી નિહાળવા વિનંતી કે જેથી કરીને કઈ રીતે પ્લાનિંગ કરવું, સ્ટ્રેટેજી આપણા હાથમાં હવે આવી ગઈ છે, કઈ રીતે આપણને ફાયદો થશે, સરળતા કઈ રીતે રહેશે, કઈ રીતે ઓછા પ્રકરણો વાંચીને વધુ માર્ક આપણે મેળવવા, તેની સંપૂર્ણ માહિતી આમાંથી મળી જશે. 100માંથી 100, 100માંથી 90, 70, 50નો સ્કોર કેવી રીતે કરવો તેની સંપૂર્ણ વ્યૂહરચનાત્મક માહિતી આ વિડીયોમાંથી તમને મળી શકશે. તો હું આશા રાખીશ કે તમે વિડીયો અંત સુધી નિહાળજો. સૌપ્રથમ વિષય અર્થશાસ્ત્રની માહિતી આ વિડીયોમાંથી મળશે તમને. અને ખાસ કાળજી લેવા જેવી બાબત એ છે કે આ વિષય માળખું 30%, 70%, 30% ઓબ્જેક્ટિવ અને 70% સબ્જેક્ટિવ, એટલે કે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 30% પૂછાશે અને 70% વિષયલક્ષી પ્રશ્નો પૂછાશે. તો આ માળખું માત્ર 2021-22ના ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષા માટેનું ધ્યાનમાં રાખવું. આ બોર્ડની લગભગ જે 2-3 દિવસ અગાઉની એટલે કે 22-23ની જે નવી રૂપરેખા છે, નવા પરિપત્ર છે, તેના આધારે માત્ર 2022ની બોર્ડની પરીક્ષામાં જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે, અંગ્રેજી માધ્યમના, ગુજરાતી માધ્યમના, ગુજરાત બોર્ડના, તે વિદ્યાર્થીઓ માટે જ આ વર્ષ માટેનું જ આ માળખું છે, એ ધ્યાનમાં રાખીને આ વિડીયો નિહાળવા વિનંતી. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીશું પ્રકરણના નામ તમને અહીં દેખાય છે ઇકોનોમિક્સના. ગ્રાફ્સ ઇન ઇકોનોમિક્સ, ઇન્ડિકેટર્સ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ટોટલ 11 ચેપ્ટર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ રહ્યા તમારું પ્રથમ, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, આ ટોટલ 11 ચેપ્ટરોની માહિતી છે. પ્રથમ પ્રકરણનું ગુણભાર તમે જોઈ શકો છો 8, બીજા પ્રકરણ 10, ત્રીજું 8, ચોથું 8, 5, 6, 7, 8, 10 ગુણના પ્રકરણ છે. 9 અને 10 8-8 ગુણના છે અને
છેલ્લું પ્રકરણ 10 ગુણનું છે, એટલે કોઈ પણ પ્રકરણ 10 થી વધારે ગુણના નથી એ વાત નક્કી છે. બીજી બાબત, આપણું જે માળખું છે તેના અનુલક્ષીને અંદાજિત બ્લુપ્રિન્ટ આપણે કહીએ છીએ કે જેના અંદર ABCD ને આ રીતે બાયફર્ગેટ કરી શક્યા હતા. એટલે કે આ રીતે આપણે ABCDE વિભાગને ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. વિભાગ A ની અંદર આપ જોઈ શકો છો સેક્શન A 1 marks each, section B 1 marks each, section C 2 marks each, section D 3 marks each and section E 5 marks each. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. That's why I'm telling you in English, गुजराती एंड हिंदी. तो तीनों मीडियम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्ट्रक्चर. आपको इकोनॉमिक्स में स्कोर करने के लिए पेपर डिजाइन कैसे होंगे, आपको क्या ध्यान में रखनी है बात है. तो सेक्शन ABCDE के अंदर हम देखें तो एक A और B के लिए, CD के लिए 2 और 3 और सेक्शन E के लिए 5 मार्क्स का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से सेक्शन वाइज चैप्टर के हिसाब से जो वेटेज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर. सबसे पहले बात करें काफी इंपॉर्टेंट कि टोटल सेक्शन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब की बात जो होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी. सेक्शन ए के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे 20 मार्क्स है और सेक्शन बी के अंदर 10 मार्क्स है, यानी 20 + 10 30 मार्क्स हमारे MCQ और 1 मार्क्स के हुए हैं. 20 मार्क्स के MCQ है, 1 मार्क्स ईच सेक्शन ए के लिए 20 मार्क्स है और सेक्शन बी के लिए हम देखें तो 10 मार्क्स, यानी टोटल 70. बाकी बचे वो सब्जेक्टिव होंगे. 30% स्कोर यानी 100 के 30% 30 मार्क्स आपको, और आपको सिर्फ सेक्शन ए और बी मिला के मिलेंगे 30 मार्क्स. यानी ए सेक्शन के अंदर तो देखे तो 20 मार्क्स के MCQ है और बी सेक्शन के अंदर देखे तो 10 मार्क्स के हमारे 1 लाइन क्वेश्चन है. सेक्शन सी की बात करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेक्शन सी. आप ये जो मेरा कर्सर मूव हो रहा है आप देख सकते हो येलो, 16 मार्क्स हमारे सेक्शन सी के अंदर है. टोटल 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस हमारे सेक्शन सी के अंदर है, जो 24 मार्क्स हर एक के 2 के हिसाब से 12 2 24. સેક્શન એ અને બી માં આપણે વાત કરીશું તો એ અને બી ની અંદર 20 અને 10 માર્ક. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंटेंट 20 एंड 10 मार्क्स. और सेक्शन सी की बात करें तो 12 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से होते हैं 24 मार्क्स के. सेक्शन डी के अंदर हम बात करें तो सेक्शन डी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं हम 7 क्वेश्चन 21 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से चले तो 7 3 21. गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए ए અને બી વિભાગ 1 માર્ક્સના 20 અને 10 માર્કમાં ટોટલ. સેક્શન સી દરેકના 2 ગુણ એટલે 12 પ્રશ્ન, 12 ગુણ્યા 2 24 ગુણ. અને સેક્શન ડી 3 ગુણના 7 પ્રશ્ન એટલે 21 ગુણ. There is a 20 marks for section A, 10 marks for section B, 24 marks each 2 question, 12 2 2 24 and 7 3 3 21. So there is a 21 marks for section D and 24 marks for section C, and 20 and 10 marks respectively for the A and B. Last section E, this one the last section E, there is content 25 marks. आप आखिरी सेक्शन को देखो, ऐसा टाइप क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के आपको टोटल 25 मार्क्स में डिवाइड हुए हैं. यानी सब मिला के देखे तो जो स्ट्रक्चर पहले था वो सिर्फ 10 MCQ मिलते थे, अब 20 MCQ, यहाँ पे 10 1 लाइन क्वेश्चंस, ईच 2 मार्क्स के 24 मार्क्स, ईच 3 मार्क्स के 21 मार्क्स और ईच 5 मार्क्स के 25 मार्क्स. यानी सभी मिला के हम देखें तो 20 + 10 + 24 + 21 + 25 दैट इज 100 मार्क्स यहाँ पे हो गए. अब यहाँ पे जो लिखा है 20 10 16 10 7 5 ये क्या है और 127 क्यों हो रहा है यहाँ पे टोटल मार्क्स. तो एक बेनिफिट है कि ए और बी के अंदर कुछ हमें ऑप्शन नहीं मिलते, सीधे 20 × 1 20, 10 × 1 10. यानी ए और बी सेक्शन के अंदर गुजराती मीडियम वाले પહેલા અને બીજા વિભાગમાં પણ કોઈ ઓપ્શન નથી મળવાના. 20 માર્કનો અને 10 માર્કનો જે એ અને બી વિભાગનો પ્રશ્ન છે તેમાં 20 × 1 એટલે 20 માર્ક, 10 × 1 એટલે 10 માર્ક, 30 ગુણમાં કોઈ પણ પ્રકારના આપણને ઓપ્શન મળશે નહીં. એ અને બી કમ્પલસરી છે. હવે તમને દેખાશે કે 16 અને 32 શું લખેલું છે, 10 અને 30 શું છે, 7 અને 5 શું છે. તો આપણે સેક્શન સી ની અંદર લખવાના છે 12 જ, પ્રશ્ન પૂછાશે 16.
સેક્શન ડી ની અંદર લખવાના છે 7 જ, પ્રશ્ન પૂછાશે 10. सेक्शन ई ની અંદર લખવાના છે 5, प्रश्न पूछा છે 7. यानी आपको टोटल यहाँ पे सेक्शन सी डी ई मिला के ऑप्शन मिल रहा है. आउट ऑफ 16 यू हैव टू राइट ओनली 12. आउट ऑफ 10 you have to write only 7. Out of 7 you have to write only 5. So there's a respectively options are given for the section C, D and E. सेक्शन सी डी और ई के लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. सी के अंदर हम देखें, लास्ट में हम कॉलम को मेंटेन करके नंबर ऑफ क्वेश्चन गिवन इन, ये क्या है लास्ट कॉलम. तो यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन के कोई चांस नहीं है. 20 में से 20 लिख नहीं है, यहाँ पे 10 में से 10 लिख नहीं है. बट हियर यू कैन फाइंड आउट 4 into 2 8, यानी 4 ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं. टोटल लिखने हैं हमें 12 ही, 16 में से 12 ही लिखने हैं, जिनके हमें 24 मार्क्स मिलेंगे. और हम देख सकते हैं यहाँ पे 16 - 12 दैट इज कॉल्ड 4. यहाँ पे 4 क्वेश्चन ज्यादा है, यानी ये 4 ऑप्शन के क्वेश्चन मिल रहे गुजराती मीडियम 16 માંથી આપણે 12 જ લખવાના છે. એટલે લાસ્ટ કોલમ જે તમને દેખાય છે 4 માર્કનું આ કોલમ, એ 4 માર્ક શું છે, 4 પ્રશ્ન વધારાના છે 2 માર્ક પ્રમાણે. એટલે 8 પ્રશ્ન 8 ગુણ તમને વધારાના મળે છે. ટોટલ 12 જ પ્રશ્ન લખવાના છે. આપવામાં આવશે 16 પ્રશ્ન અને 16 માંથી 12 લખવાના. એનો મીનિંગ કે 4 પ્રશ્ન તમને વધારાના ઓપ્શનમાં આપવામાં આવશે. એ જ રીતે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સેક્શન ડી ની અંદર 3 અને 9 શું છે, તો કે તમને લખવાના છે 7 જ, તમારે પ્રશ્ન લખવાના છે 7 જ, પણ આપવામાં આવશે 10. એટલે ટોટલ 3 ગુણના પ્રશ્ન તમને વધારાના આપવામાં આવશે. 9 ગુણના પ્રશ્ન 3 ગુણ્યા 3 કરીએ તો 9 ગુણ થશે. એટલે ટોટલ 7 જ લખવાના, આપવામાં આવ્યા છે 10, એટલે 3 વધારાના તમને આપવામાં આવે છે, ઓપ્શન જેને આપવામાં આવે છે. એ જ રીતે સેક્શન ઈ ની વાત કરીએ, સેક્શન ઈ ની અંદર કુલ 7 આપવામાં આવશે, તેમાં તમારે 5 જ લખવાના છે. એટલે કે 2 ઓપ્શન તમને વધારાને આપવામાં આવે છે. આમ આ રીતે જોઈએ આપણે તો કુલ 20 + 10 30, 30 ને 12 42, 42 ને 7 49, 49 ને 5 54, એટલે 54. 20 + 10 30, 30 + 12 42, 42 + 7 49 and 49 + 5 that is called 54. आपको टोटल 54 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं. आपको जो 100 मार्क्स के अंदर डिवाइड हुए हैं, उनके सामने आपको क्वेश्चन मिलेंगे 4 + 3 + 2, यानी 4 और 3 7 और 2 9. आपको 9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर से. यानी टोटल मार्क्स होंगे 100 ही, मगर क्वेश्चन पेपर होगा 127 मार्क्स का. उस 27 मार्क्स कैसे ज्यादा बढ़े, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, उनके 8 मार्क. यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, उनके 9 मार्क्स. यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, उनके 10 मार्क्स. यानी 8 + 9 17 and 17 + 10 27. यहाँ पे 27 मार्क्स ज्यादा यहाँ पे ऐसे हो रहे हैं जो ऑप्शन में है. यानी ओवरऑल 4 + 3 3 + 2 दैट इज कॉल्ड 7 + 2 दैट इज कॉल्ड 9. आपको 9 ऑप्शन मिल रहे हैं सी डी और ई को लेके. बाकी के अंदर कोई भी क्वेश्चन हमें ए और बी में ऑप्शन में मिलने वाले नहीं है. ये बात ध्यान से सुनना. अब यहाँ पे जो लिखा है, ये सेक्शन ए के लिए 8 मार्क्स, बी के लिए 10 मार्क्स है. ए के अंदर एमसीक्यू के 2 क्वेश्चन होंगे. इट इज अ प्रिडिक्टेबल कि ऐसा हो सकेगा. It is predictable. It is not formed by the board. But as per calculation, अगर 20 मार्क्स के एमसीक्यू सेक्शन ए के अंदर पूछे जाने वाले हैं, तो 11 क्वेश्चंस 11 चैप्टर में से हर एक में से 2-2 के कोई चांसेस नहीं है, वरना 20 हो सकते हैं. तो मनी के अंदर जो 3rd चैप्टर उसके अंदर से 1 और फॉरेन ट्रेड के अंदर से 1 करे, तो बाकी के हर एक चैप्टर के अंदर से 2-2 अप्रोक्सीमेटली 2-2 एमसीक्यू आने के चांसेस रहेंगे. उसी हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल 11 चैप्टर में से हमें 10 चैप्टर के 1 लाइनर है. तो एज पर अवर गाइडलाइन, एज पर बोर्ड गाइडलाइन कि उनको डिवाइड करना है, तो शायद ऐसा हो सकता है, इट इज प्रिडिक्टेबल कि ऐसा हमारा ब्लूप्रिंट हो सकता है कि ए और बी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं. डी के अंदर थर्ड चैप्टर के अंदर कोई भी बी सेक्शन नहीं होने वाला. 4th के अंदर 2 होंगे, पॉवर्टी के चैप्टर के अंदर 1, उसके बाद 6 के 1, 7 और 8 में नहीं भी हो सकते, 0 भी हो सकते हैं. फॉरेन ट्रेड के अंदर 2 मार्क्स के 1-1 लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं. और इंडस्ट्रियल और
इमर्जिंग इश्यू के अंदर एक एक हो सकती है, तो ये प्रिडिक्टेबल है क्योंकि अभी तक सैंपल पेपर बोर्ड से आया नहीं है। जब सैंपल पेपर वो हमें भेजेंगे तो बोर्ड सैंपल पेपर के अंदर काफी क्लियर कट रहेगी कि कैसे आपको एग्जाम के अंदर ए के अंदर बी के अंदर कितना वेटेज होगा वो समझ में आ जाएगा। मगर इट इज प्रिडिक्टेबल, ऐसा हो सकता है फर्स्ट टेस्ट के लिए इतना हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि ए और बी के अंदर फिक्स ही है 20 और 10 मार्क्स। अब बात करें सेक्शन सी और सेक्शन डी की। सी के अंदर देख सकते हैं ये स्टार है, स्टार का मतलब ये है कि शायद उसके अंदर ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टार है क्योंकि आपको यहाँ पे 12 में से 16 में से 12 ही लिखने हैं, 10 में से 7 ही लिखने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन के चांसेस है आपको। तो स्टार वाला आपको ऑप्शन के अंदर पूछा जा सकता है। कौन से चैप्टर में से ऑप्शन होंगे वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। सेक्शन ई के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर, उसके बाद 5th 6th 7 8 और 11, ये जो चैप्टर है उनमें से 1 लाइन और 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। अब सब मिला के हम देखें तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 11 10 मार्क्स के हैं, बाकी सभी 8 मार्क्स के हैं। यानी सभी 11 चैप्टर को तकरीबन हमने 8 और 10 मार्क्स के अंदर वेटेज में डिवाइड किया है। तो ये स्ट्रक्चर की बात हुई। ये बात खास ध्यान रखनी है जो बाजू में आप पढ़ रहे हो। આ માળખું માત્ર 2021-22 કોરોનાની પરિસ્થિતિને લઈને જ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેની ખાસ નોંધ જોનારે લેવાની રહેશે। એટલે એવું નહીં વિચારવાનું કે હવે પછીની દરેક પરીક્ષાઓમાં આ જ પ્રમાણેનું માળખું હશે, નહીં। ડિપેન્ડ અપોન કન્ડિશન કઈ રીતે જઈ રહી છે તેના આધારે જે ગવર્મેન્ટનું પરિપત્ર આવે તે પ્રમાણે આપણે પાલન કરવાનું રહેશે। તો આ એક આપણી માત્ર વિષય અર્થશાસ્ત્રને લઈને એક બ્લુપ્રિન્ટ કે કઈ રીતે ABCDE વિભાગમાં આપણા પ્રકરણો સમાયેલા હશે। હવે આપણે વાત કરવાની છે આગળ वेटेज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन के हिसाब से हम बात करें तो सेक्शन 20 मार्क्स, ईच 1 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स। आप चाहे तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो આપણે વાત કરીએ તો સેક્શન એ ની અંદર ટોટલ 20 પ્રશ્ન પૂછાશે, દરેકનો 1 ગુણ એટલે ટોટલ 20 ગુણ રહેશે। વિભાગ બી ની અંદર 10 પ્રશ્ન પૂછાશે, દરેકનો 1 ગુણ એટલે 10 માર્ક રહેશે। વિભાગ સી ની અંદર 12 પ્રશ્ન પૂછાશે, દરેકના 2 ગુણ એટલે 24 માર્ક રહેશે। વિભાગ ડી ની અંદર 7 પ્રશ્ન પૂછાશે, જેના દરેકના 3 ગુણ હશે એટલે 21 માર્ક, અને સેક્શન ઈ ની અંદર 5 ગુણના 5 પ્રશ્ન 25 માર્ક થશે। ફોર ઇંગ્લિશ મીડિયમ there is a 20 questions in each. In section A, each carries 1 marks, 20 mark total. Section B, 10 questions, each carries 1 marks. Section C, total question 12, carries each 2 marks, 24. Section D, 7 question total, carries 3 marks each, 21. And section E, long essay type questions, section 5 marks, carries 25 marks. तो આ એક માત્ર આપણે અર્થશાસ્ત્રને લગતી જાણકારી છે। હવે બીજા વિષયોની પણ આ રીતની જ સંપૂર્ણ માહિતી તમારે જોઈતી હોય તો ગૂગલ પર www.gscb.org પર તમે જશો। અહીંયા તમને વેબસાઇટનું નામ પણ દેખાયું છે www.gscb.org। આની પર જઈને તમે પોતાના अन्य વિષયોની પણ માળખાકીય પ્રશ્નનું પરિરૂપ આના જે વેબસાઇટના જે તમને અત્યારે આ સ્ક્રીનની ઉપર દર્શન થઈ રહ્યા છે તેની અંદરથી તમે પોતાના બીજા સબ્જેક્ટનું પણ, મારો સબ્જેક્ટ ઇકોનોમિક્સ હોવાથી અર્થશાસ્ત્રની ખૂબ જ વિસ્તૃત માહિતી આમાં આ વિડીયોમાં મેં શેર કરી છે। આ જ પ્રમાણેની ઓસી, અકાઉન્ટ, સ્ટેટ, સાયકોલોજી, હિસ્ટ્રી, બાકીના લેંગ્વેજના વિષયોની માહિતી આ વેબસાઇટ પરથી મળે। જો આપણા લેંગ્વેજના વિષયોની માહિતી ન હોય તો તે પણ ટૂંક સમયમાં રજૂ કરશે બોર્ડ, અને તે પણ ત્યાંથી જ આપણે મળી શકશે। હવે ખૂબ જ અગત્યની બાબતો, વિડીયો હજુ અંત સુધી નિહાળજો તમે। હવે ઘણું બધો આપણે કઈ રીતે કામ કરવાનું છે તેની આપણે વાત કરીશું। ઘણા બધા વિચારે છે કે વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે ફાયદો થશે આનાથી। વિદ્યાર્થીને ફાયદો કરવા માટે પહેલો મુદ્દા આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો જનરલ ઓપ્શન છે। ખાસ કાળજીપૂર્વક આનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે। હવે પછીની દરેક બાબત ખૂબ જ અગત્યની છે જે આપણા ગુણને વધારી શકે એ પ્રમાણેની છે। there is a general option
आपको जनरल ऑप्शन दिए जाएंगे। उसका मतलब क्या है कि अभी तक के बोर्ड के पेपर के अंदर सेक्शन सी के अंदर सपोज 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर थे तो उसके अंदर इंटरनल ऑप्शन थे। इंटरनल ऑप्शन का मतलब क्या, 31, 32, 33 और 33, उसके बाद 34, 35, 36 और 36, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑप्शन। क्या आपको 31, 32, 33 लिखना ही है और 34 और 34 के अंदर ऑप्शन है, या 34 के ये क्वेश्चन लिखो या ये लिखो। अब गवर्नमेंट ने कोरोना के तहत ये चेंज किए हैं, जो चेंज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और काफी फायदेमंद है, कि वहां पे जनरल ऑप्शन दे दिया स्टूडेंट को। कोई भी हमें सेक्शन सी, डी और ई के अंदर जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि अंदर के जो भी ऑप्शन होंगे वो इंटरनल नहीं है। कोई भी 10 लिखो, कोई भी 7 लिखो, कोई भी 5 लिखो, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे हमें, जनरल क्वेश्चन ऑप्शन जिसे कहते हैं। વિભાગ એ ના 10 ના બદલે 20 MCQ અને વિભાગ બી માં એક વાક્યના 10 ઉત્તરો છે। બીજો ફાયદો આપણને આ છે। दूसरा बेनिफिट ये है कि सेक्शन ए में ओल्ड प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर और ओल्ड स्ट्रक्चर के अंदर सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन थे, मगर फॉर द करंट ईयर ड्यू टू कोरोना 22 मार्च 22 के अंदर जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ही है। तो सेक्शन ए के अंदर 10 की जगह 20 MCQ रख दिए है और सेक्शन बी के अंदर 10 वन लाइनर है, यानी टोटल 30 मार्क्स हमें यहां से मिल सकते हैं। 100 में से 30 मार्क्स अगर मिल गए तो पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें, फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यानी 3 मार्क्स तो बाकी 70 में से आने ही वाला है। जिनको डर लग रहा है, प्रेशराइज है, तो उनको एक ही एडवाइस कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को इतना अच्छे से स्ट्रांगली करो कि वो 10 में से 10 से सेक्शन बी के अंदर आए और 20 में से 20 MCQ में आए, और 20 और 10 में से अगर उनके 30 में से 30 आ जाते हैं तो उनके लिए पास होना आसान बन जाएगा, क्योंकि बाकी बचे सी, डी, ई को टच करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ लिखेंगे तो भी 3 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। यानी पास होने के लिए अब आपके पास दरवाजा काफी अच्छी तरह से खुल गया है। सेकंड सेक्शन विभाग सी કે જેમાં 4 વધુ પ્રશ્નો ઓપ્શન મળશે। બીજો ફાયદો છે આપણો, 16 માંથી 12 પ્રશ્ન લખવાના છે। out of 16 you have to write only 12, so there are 4 extra question for options, so it is second benefit કે વિભાગ સી માં આપણે 4 વધુ પ્રશ્ન મળે છે। 16 માંથી કોઈ પણ 12 આપણે લખવાના છે। એવું નથી કે આ લખો અથવા આ લખો, સીધા 16 પ્રશ્ન આપી દેવામાં આવશે ને એમાંથી જ 12 પ્રશ્નના આપણે ગુણ 2 મેળવવાના છે, એટલે 24 ગુણનો વિભાગ સી રહેશે કે જેની અંદર આપણે 16 માંથી 12 લખવાના રહેશે। વિભાગ ડી ની વાત કરીએ તો વિભાગ ડી કે જેમાં 3 વધુ પ્રશ્નો ઓપ્શનમાં મળે છે આપણને। કુલ 10 પ્રશ્નનું લિસ્ટ હશે વિભાગ ડી માટે અને લખવાના છે માત્ર 7, અને તે પણ આપણા મનગમતા કોઈ પણ 7, એવું નથી આંતરિક વિકલ્પ નથી, જનરલ ઓપ્શન છે કે જેની અંદર આપણને સરળતાથી આ બધી જ 3 ગુણની જે વિભાગ ડી ની માહિતી છે તે 10 માંથી 7 ગુણ, 10 માંથી 7 પ્રશ્ન લખવાના છે અને તે પણ જનરલ ઓપ્શન છે। વિભાગ ઈ ની વાત કરીએ જેમાં 2 વધુ પ્રશ્નનો ઓપ્શન આપણને મળે છે। કુલ 7 પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યા છે, આપણને 5 પ્રશ્ન લખવાના હશે, એટલે કોઈ પણ 2 પ્રશ્નો આપણે ઓપ્શનમાં કાઢી શકીશું। જનરલ ઓપ્શન છે, 7 માંથી કોઈ પણ 5 લખવાના રહેશે। આ પ્રમાણે આપણને આ વિભાગ સી, ડી, ઈ માં આપણને ફાયદો મળી શકે છે। 16 માંથી 12, 10 માંથી 7, 7 માંથી 5 વિભાગ સી, ડી, ઈ અનુક્રમે આપણને આ રીતે મળે છે। જો इंग्लिश मीडियम वाले there are 20 MCQ instead of 10 now in new paper structure, and there's a 10 one-liner question, so you will have 30 marks in your hand। if you will get 30 out of 30, then very easy to pass। then for section C, D and E there is a 4, 3 and 2 options question are available। general option are there, you've been asked 16 questions and you have to write only 12 out of 60, you have to write only 12 out of 10, you have to write only 7 out of 7, you have to write only 5 in respectively C, D and E section। आपको सेक्शन सी, डी, ई के लिए 16 में से 12, 10 में से 7, 7 में से 5 क्वेश्चन लिखने हैं। यानी यहाँ पे जनरल ऑप्शन है। जनरल ऑप्शन का मतलब सभी को पता होना चाहिए कि टोटल 16 क्वेश्चन एक के नीचे ने आपको सेक्शन सी के अंदर दिखाई देंगे, उनमें से सिर्फ 12 ओनली 12 यू हैव टू राइट। डी के अंदर 10 में से 7, ई के अंदर 7 में से 5, तो सी, डी, ई मिला के
4+3+2 9 क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और खास बात ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 2021-22 यानी मार्च 2022 में जो एग्जाम लेने वाले हैं बोर्ड, उनके लिए ये है। पूरे साल ऐसा ही रहेगा, अगले साल क्या होगा इट डिपेंड अप टू बोर्ड। बोर्ड जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर ध्यान में लेना पड़ेगा। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हमारी ये एक कैसे हमें फायदे लेने हैं। अब दूसरा, जैसे मैंने बोला था कि वीडियो एंड तक दिखना, आ वीडियो ने हजू सुधी अंत सुधी તમે નિહાળજો, કારણ કે હજુ પણ આપણે હવે એ રીતે જવા પડશે આની અંદર સ્ટ્રેટેજી કે આપણે હજુ પણ તૈયારી નથી કરી અથવા હજુ પણ આપણને ડર લાગે છે કઈ રીતે આપણે ઇકોનોમિક્સને બેલેન્સ કરવું, કઈ રીતે બધા 11 ચેપ્ટર હવેના ટૂંક સમયમાં આપણે પૂરા કરીને આપણે મિનિમમ 50-60% માર્ક મેળવવા। તો ખાસ કાળજી રાખવા જેવી બાબતો આ છે। અત્યારે હું તમને જણાવી દઉં કે જો તમે આ પ્રમાણે પણ તૈયારી કરશો ને તો પણ તમે સરળતાથી 50 ગુણની નજીક તો આરામથી પહોંચી જશો। પરંતુ 100માંથી 100 મેળવવાવાળાએ અથાગ પ્રયત્ન કરવો પડશે, તે પણ આ સ્ટ્રેટેજી પ્રમાણેનો પ્રયત્ન કરો। આપ અહીંયા જોઈ શકો છો તમે। હવે ખાસ કાળજી રાખજો, હવે પછી ખૂબ જ અગત્યનું છે પાસ થવા માટે શું કરવું, સરળતાથી પાસ થવા માટે શું કરવું। હજુ પણ કોઈ પહેલેથી શરૂઆત નથી કરી વાંચનની, હજુ પણ બધા 11 ચેપ્ટર એમને એમ જ છે। શું કરવું, ક્યારે પૂરું કરવું કઈ ખબર ન પડતી હોય તો એ સંજોગોમાં આપ જોઈ શકો છો અહીંયા ટોટલ 10 ગુણવાળા 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 પ્રકરણ છે। 11માંથી 6 પ્રકરણો એવા છે કે જે 10-10 ગુણના વેઇટેજ ધરાવે છે, એટલે કે બીજું, પાંચમું, છઠ્ઠું, સાતમું, આઠમું અને 11મું, આ 6 ચેપ્ટરો 1, 2, 3, ફરી પાછું કહું છું, આ એક 10 मार्क, बीजा 10 मार्क, तीजा, चौथा, पांचवा और छठा, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स के है। 10 6 60 मार्क्स का है। अगर बाकी के चैप्टर को हम टच भी ना करें और ये चैप्टर जो 11 में से हाफ से थोड़ा ऊपर, अगर 6 तक हम जाए, 6 चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करें, कोई भी कोना ना छोड़े, डाइजेस्ट हो या टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक इज द की, उनको अगर अब सिर्फ और सिर्फ बाकी बचे 3 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर या 2.5 मंथ के अंदर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें सेकंड चैप्टर के ऊपर, इंडिकेटर्स के चैप्टर के ऊपर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर और इमरजेंसी इश्यू, ये 6 चैप्टर को भी हम अगर लगातार पढ़ते जाएंगे तो 60 मार्क्स का हम कवर कर पाएंगे। 60 में से इतने ही चैप्टर को ध्यान से पढ़े, अच्छी तरह से बोर्ड के क्वेश्चन को पढ़े, अच्छी तरह टेक्स्ट बुक से पढ़े, तो 60 में से एटलीस्ट 40-50 तो आराम से आपके आ सकते हैं, क्योंकि हमने 11 चैप्टर का बर्डन हाफ कर दिया है। अगर हाफ चैप्टर पढ़ेंगे तो भी इतना होगा। और जो 100 में से 100 स्कोर करने वाले हैं उनके लिए तो मैंने बेनिफिट दिखाई है कि आपको 20 और 10 मार्क्स के ए और बी सेक्शन के अंदर सब कुछ मिल रहा है। सेकंड सेक्शन सी, डी और ई के लिए अगर हम बात करें तो हर एक सेक्शन के अंदर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, हर एक ऑप्शन के साथ हमें मार्क्स के चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनल ऑप्शन चला गया है, जनरल ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है कि कम चैप्टर को सिलेक्ट करके भी हम ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो कर पाते हैं। हम अभी तक बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, कुछ नहीं किया, अब बाकी बचे 2-3 मंथ के अंदर, ये दिसंबर ओवर होने को आ रहा है, जनवरी फरवरी के अंदर हम इतने चैप्टर को ही सिलेक्ट करें, सपोज इंडिकेटर वाले चैप्टर को या पॉवर्टी वाले चैप्टर को या अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर को या पॉपुलेशन वाले चैप्टर को, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर को या इमर्जिंग इश्यू वाले चैप्टर को, यानी चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद नीचे 9 और 11, इतने चैप्टर को ध्यान में रख के अच्छे से बाकी के चैप्टर को टच भी ना करे तो भी 60 में से अगर ऐसी आपने प्रिपरेशन की तो आपके मिनिमम 40 अब तो आएंगे ही आएंगे खेलते खेलते। तो इतना करने से अगर 40 आ रहे हैं तो बाकी बचे 5 चैप्टर जो 8 मार्क्स वाले हैं, 1, 2, 3, ये आप देख रहे हो यहाँ पे 8 मार्क्स का वेटेज, 8 मार्क्स का वेटेज, 8 मार्क्स का वेटेज, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर जो ऐसे है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स के वेटेज वाले है, यानी 8 5 40। अगर 40 मार्क्स के अगर हम चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो 40 मार्क्स हमारे यहाँ स्कोर होने के चांसेस रहते हैं। 40 में से
40 भी आ सकते हैं, क्योंकि ए और बी के अंदर तो 30, 20 और 10 मिला के 30 तो हो ही जाएंगे हमारे। तो जो अब के स्ट्रक्चर है वो काफी इजी हो गए हैं, कैसे पास होना है, वो कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ 33 तक जाओ, 50 तक जाओ, 60 तक जाओ, मगर 100 में से 100 आने के लिए भी अगर हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे कि 6 चैप्टर को हम 60 मार्क्स दे रहे हैं और बाकी के 5 चैप्टर के ऊपर हमारा 40 मार्क्स है, तो दोनों के अंदर 50-50 करेंगे। 60 मार्क्स के 50% ही करें। सपोज मानो कि 10-10 चैप्टर, 10 मार्क वाले 6 चैप्टर है, उनके हम 50% ले लें। सपोज हमें अच्छी तरह से याद रहेगा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन, ये 3 चैप्टर को हमने ले लिया। 10-10-10 के 3 ले लिया हमने, और 8-8 वाले भी हमने 8-8 वाले 4 ले लिए। सपोज फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फॉरेन ट्रेड या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये हमने 4 ले लिए। तो 8 4 32, 32 के अगर 50% हमारे दिमाग में कुछ जा रहा है तो 16 मार्क्स हुए। और पहले जो 60 मार्क्स वाले हमने 4 सिलेक्ट किए, अरे 3 सिलेक्ट किए 10-10 मार्क्स के, वो 10 मार्क्स वाले 3 चैप्टर के 30 मार्क्स में से अगर 20 मार्क्स आते हैं तो 20, और वहां हमारे 32 वाले 8 चैप्टर जो हमने 8 मार्क्स वाले 4 चैप्टर लिए थे, उनके 32 में से भी अगर 20 आते हैं, यहाँ 4 चैप्टर 10-10-10 मार्क्स वाले, उनके 40 में से भी 20 आते हैं, तो 20 + 20 40 हो जाएंगे। यानी अब आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है। हर एक चैप्टर को पढ़े या सिलेक्टिव चैप्टर को पढ़े, या सिलेक्टिव चैप्टर के 50%, बाकी के चैप्टर के 50%, ऐसा पढ़े। 11 तो अगर है 90 अप लाने हैं, A1 लाने हैं, 100 में से 100 लाने हैं, तो भी ये आपको अच्छी तरह से सूट करेगा कि हम फर्स्ट चैप्टर को, थर्ड चैप्टर को, फोर्थ चैप्टर को, 9 चैप्टर को, 10 चैप्टर को, जो 8-8 मार्क्स वाले चैप्टर है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान न दे, और थोड़ा उसको सिर्फ 5 to 6 मार्क्स तक अगर ले जाए, तो बाकी बचे चैप्टर के अंदर भी हम आसानी से 10-10 मार्क्स के ज्यादा चैप्टर उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और मार्क्स ला ले। ये एक आपके लिए इजी रह गया है अब तो, क्योंकि बोर्ड वाले ने ऐसा बना दिया है कि हम आसानी से पास हो जाएंगे, मगर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन रेगुलरिटी एंड इंटरेस्ट। वरना 10 मार्क्स वाले 6 चैप्टर में से भी अगर हम ऐसा सोचेंगे कि तो ऑप्शन में चले जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, तो देयर इज अ बिग लॉस, क्योंकि वो आपने जानबूझ के अपने पांव पे कुहाड़ी मारी है, ऐसा समझेंगे हम। क्योंकि हमने सिर्फ 6 चैप्टर की बात की, बाकी के चैप्टर को अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस 6 चैप्टर के अंदर से अगर 60 मार्क्स के अंदर भी हम ऐसा सोचते कि क्वेश्चन तो हार्ड है, शायद ऑप्शन में चले जाएंगे, तो गए काम से आप। तो अच्छी तरह से ये आप बात ध्यान में रख के अपने जो भी स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करना। जो स्ट्रक्चरल बात हुई थी, उसके साथ ये ABCD की बात हुई कि 20-10, 20-10, 24, 21, 25, यानी अगर A-B सेक्शन की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करें तो 30 मार्क्स वहां पे है, और लास्ट के 25 को करें हम तो 25 है। 30 + 25 55 मार्क्स तो ऐसे ही बैठे हैं 3 सेक्शन को लेके। 25 मार्क्स के अंदर ग्राफ आपको सिलेक्ट करके, एनालाइज करके मार्क्स स्कोर कर देने हैं। 5 में से 5 भी आ सकते हैं। 90% स्टूडेंट गॉट 5 out of 5 इन दैट सेक्शन ई क्वेश्चन। तो अच्छी तरह से अगर हम सेक्शन ई के बाकी के 4 क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो वहां 25 में से 20+ तो होने के चांसेस रहेंगे। 15 और 20 के करीब करीब तो अगर हम अच्छा लिख रहे हैं तो मार्क्स मिलेंगे हमें। और 20-30 ए और बी सेक्शन को लेके हम चले, और 30 में से भी अगर हमारे 15% स्कोर हो रहे, 50% स्कोर हो रहे, तो 30 का 50% होते हैं 15, यानी ए बी मिला के अगर 15 मिल गए, बाकी ई सेक्शन के अंदर 20 मिल गए सपोज, तो 15 और 20, सोच लो 35 तक तो आप आराम से पहुंच गए। जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी है, अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ब्लूप्रिंट के ऊपर। बाकी की ब्लूप्रिंट भी आपको 100% मिलेगी। कमेंट बॉक्स के अंदर मैं अपनी बाकी के सब्जेक्ट की लिंक शेयर करने वाला हूं, तो बाकी के सब्जेक्ट के अंदर आपको गुजरात बोर्ड की वेबसाइट तक अगर पहुंचना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्लिक करना, वहां से भी आपको बाकी के सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। ये आपके हमने फायदे दिखाए कि जनरल ऑप्शन है, CDE के अंदर ऑप्शन हमें ज्यादा मिल रहे हैं, 100% आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बात। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ICT Kho for You channel. Those who are subscribed this channel,
heartily congratulations. Thank you. Thanks a lot. Or those who are still not subscribed, go to www.icdco4u and subscribe it so that you can get the notification of एजुकेशन मैटर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देख पाओगे बोर्ड के एग्जाम की प्लानिंग कैसी करनी है। इस वीडियो से पहले सेकंड टेस्ट की प्लानिंग के बारे में हमने आप सभी को समझाया था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बोर्ड के 14 से लेके 24 मार्च को अगर एग्जाम हो रही है, 2 वीक बोर्ड ने एक्सटेंड की है। 2022 की मार्च स्टैंडर्ड 12 की जो 14 से स्टार्ट होने वाली थी वो 1 या 2 वीक पीछे गई है, उससे हमें और बेनिफिट मिले हैं। तो अच्छी तरह से बोर्ड के एग्जाम के अंदर कैसे प्लानिंग करनी है, कौन सा एक्शन प्लान हो सकता है, वो सभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके जाएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। और those who are subscribed this channel, heartily thank you. Those who are new viewers, please subscribe this channel. Thank you for the day.